Namaskar children, this is Disha ma'am and yes, we are going to learn English. Now, as you can see on the screen, it is term 2 worksheet. And why am I sitting with this term 2 worksheet? Because we have completed our revision sheet or isme there were couple of things which are remaining to be done. दैट मीन्स इसमें थोड़ा सा राइटिंग पोर्शन है जो मैंने सेव करके रखा था फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. I hope you guys have this term 2 worksheet. Okay, so what are we going to do today? See, we have learned writing mein, we have done picture description, we have gone through the paragraph writing, we have been writing emails, we have been writing letters. Today, we will write both the kinds of letter. That means formal and informal. Now, as you all know, formal letters are the letters which are written to the authorities, to the person you don't know, right? Suppose you are writing to the principal, suppose you are writing to the judge, suppose you are writing to the PSI, to the policeman, to deputy collector, to collector, mayor. So they are the people who are at the post designation, right? And informal letters means you are writing these letters to your relatives, to your friends, to your family. Clear? So today in classwork, I will be giving you or I will be showing you both letters of informal and formal. हमने बहुत बार प्रैक्टिस करी हुई है, बट थोड़ा सा ये टॉपिक मैंने जानबूझ के हार्ड रखा था so that it can be explained. I can explain you what to write when the topic is bit difficult for you guys, right? Chaliye, so what are we going to do? We'll be writing a formal letter and an informal letter. Chaliye, so without wasting time, let us move to today's session. So as you can see, term 2 worksheet, एंड हम इसको ओपन करेंगे. लेटर राइटिंग जहाँ से शुरू हो रहा है, दिस वॉज द लास्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड ये वाला लेटर हमने लिख लिया है. सो वी कम टू द सेकेंड लेटर. प्लीज टेक आउट दिस पेज. सेकेंड लेटर, राइट? No need of hesitating because I am sending this all images with this videos also. सो हश पुश करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू गो थ्रू कि हाउ दिस थिंग्स आर रिटन, राइट? चलिए, नाउ रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट द लॉस इन स्टडीज दैट यू फेल्ट ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड. ऑल्सो मेंशन द efforts of your teacher to overcome this problem. दिस इज समथिंग चिल्ड्रन कि हम बहुत बार इसके बारे में बात कर दिए हैं. वी ऑल नो दैट दिस कोरोना हैड played a major change in our lives. जो हमारी स्कूलिंग थी उसकी जगह पे हम ये मोबाइल में हम आ गए हैं, राइट? सो दिस ऑल हैड मेड अ चेंज in our learning also, in our studies also. Now because I tell you every time that because of your teachers hard work and your parents support and your coordination, at least we are able to get to a benchmark. एक लेवल तक हमको समझ ही आ जाता है. मोस्टली सबको समझ आ जाता है. दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड, उनका कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लेटर इज इनफॉर्मल. वाई? बिकॉज यू आर राइटिंग इट टू योर मदर. सो इट कैन बी एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट. तुम चाहे जितना लंबा 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 लेटर्स लिखो. दिस यहाँ पे जो मैंने लिखा है दैट इज माई assumptions or my thinking. You can write any answers or any topic if you want to elaborate this letter, right? Chale. So first of all, left hand side your address. This would be an informal address, so this should be your address, right? Properly address अपना लिखिए so that postman सीधा आपके घर तक लेटर पहुंचा सके. So address 703 श्याम पैलेस, बोनी पार्क, रवापर, Morbi 363641. Clear? You can also write date over here, but informal letter में अगर आप डेट नहीं लिखते हो तो चलता है, not a problem. Formal letters, yes, you should mention the date, right? चलो. Dear mother,
or mom, whatsoever you want to write. First of all, line क्या लिखेंगे? Hello, how are you? Hope you are in the best of your health. I am writing this letter to you to tell you about my studies and the loss that I felt during this pandemic. Now, what is pandemic? Pandemic माने जब ये कोरोना काल जो चला, that is known as pandemic period. Pandemic माने a situation where thousands of lives are at risk. That situation is known as pandemic. So, hello, how are you? Hope you are in the best of your health. I am writing this letter to tell you about my studies and the loss that I felt during this pandemic. चलो, ये हो गया बेसिक इसका इंट्रोडक्शन. अब यहाँ पे देखिए सब आ गया. किसको लेटर लिख रहे हो? मॉम को. क्यों लिख रहे हो? अबाउट द लॉस इन स्टडीज दैट यू फेल्ट ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड. राइट, तो हम ये लेटर का रीजन उनको पहले ही दे रहे हैं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई स्टडीज एंड द लॉस दैट आई फेल्ट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. राइट, चले नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इसको ब्रीफिंग करते हैं. दिस इज इंट्रोडक्शन. सी, इसमें मार्क्स आ जाएंगे. ये दिस इज योर एड्रेस, सो आपको इसके मार्क आ जाएंगे. सैल्यूटेशन आपने अगर प्रॉपर लिखा है. इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज ओके, क्लियर. नाउ इसको हम ब्रीफिंग कर रहे हैं. ब्रीफिंग माने उसको इलॉबरेट कर, डिटेलिंग कर रहे हैं कि क्या लिखना है. येस, दिस लास्ट ईयर हैड मेड मेनी चेंजेस इन आवर लाइव्स एंड सो इन आवर स्टडीज टू. Our daily schooling was stopped and then it all went online. Though online is good, but then due to some technical errors, many a times the connection gets disturbed. At times we are not able to hear and many times we get disconnected. So I feel that we can still not compare our actual teaching with online. Right? दो ही sentence में पूरा details आ गया है. What happens during online is many a times, बहुत बार अपने ही इंग्लिश के उसमें होता है. many a times I am facing connection errors, many a times you are facing connection errors. आवाज़ मेरी नहीं आती है या फेस मेरा नहीं दिखता है, आप लोगों का फेस मुझे नहीं दिखता है, या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप. सो दिस ऑल एरर्स आर समथिंग दैट वी कांट हेल्प इट, यू नो. दिस आर नॉट ह्यूमन एरर्स, वो टेक्निकल फॉल्ट्स है. राइट, कभी आप फ्रीजिंग आ जाए, आप लिखते हो यू गाइज राइट मी दैट मैसेज दैट मैम यू आर फ्रीजिंग. सो दैट इज ड्यू टू टेक्निकल एरर्स. माई जो नेट में प्रॉब्लम होता है वो. सो हियर इन दिस पैराग्राफ आई हैड मेंशन ऑल द थिंग्स दैट इज स्टॉपिंग और दैट इज द कॉज ऑफ द लॉस इन योर स्टडीज. Though online is good, but then due to some technical errors, many a times the connection gets disturbed. Yes, many a times we are not able to hear and many times we get disconnected. So I feel that we can still not compare our actual teaching with online. Right? Online में अगर actual में मेरे क्लास में बैठे हो और if somebody misbehaves, तो I'll give a slap. Right or wrong? टपली मारूंगी पीछे, तो आपका तुरंत ध्यान आ जाता है कि नहीं मैम ने डाटा, मैम बोल रहे हैं कि यही ध्यान रखो. क्लियर. बट ऑनलाइन में तो वो पॉसिबल नहीं है. सो दैट comparison cannot be done. Clear? Then, but at least we are capable of getting our education, and that made us all connected to my learning or to our learning. This is due to teachers' efforts, due to इंटरनेट एंड ऑल. एटलीस्ट आप सोचो कि अगर लाइफ में ऐसा हो जाता कि लाइफ क्या इसमें इस पीरियड में ऐसा हो जाता दैट अगर इंटरनेट नहीं होता या दिस काइंड ऑफ ऑनलाइन टीचिंग नहीं होती तो आप सोचो आप कुछ नहीं पढ़ पाते. सो उससे बेटर है दैट एटलीस्ट वी आर गेटिंग आवर बेसिक एजुकेशन. क्लियर. मी एंड माई फ्रेंड्स आर जस्ट प्रेइंग दैट आवर स्कूल गेट्स started soon and we all can get back to our normal studies. Hoping to see you soon. Lovingly yours XYZ. XYZ में you will write your name. Clear? चलो, this was the letter which is written to mother. Right? Now let us see a formal letter, an example of formal letter जो हम किसी एक authority को लिख रहे हैं. Come to the next question. Write a letter to the municipality of Morbi asking them to collect the garbage that had gathered near your house. Mention the ill effects too. Ill effects माने उससे
अगर सपोज आपके घर के बाजू में कचरा पड़ा, कचरा का ढेर पड़ा है, कोई उठा नहीं जाता है, नहीं ले जाता है, इन दैट केस व्हाट वुड बी योर अप्रोच? सी बेसिकली ये लेटर लिखने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट म्यूनिसिपैलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग दिस गार्बेज। ठीक है, अगर हम छोटी से बात करें कि आपके घर का कचरा कहाँ कलेक्ट होता है? डस्टबिन में। वो डस्टबिन उठाने के लिए, डस्टबिन अगर आप आपको पता हो, अपार्टमेंट में रहते हो या घर पे रहते हो, नगर पालिका की एक वैन आती है, खुला ट्रैक्टर जैसा, एंड वी हैव टू डिस्पोज दिस गार्बेज इनटू दैट ट्रक, राइट? वो फिर एक जगह पे कलेक्ट होता है और उसको फिर ये लोग बोले ना कि बायोडिग्रेडेबल उसके साथ मैच करके साइंटिफिक थोड़ा सा केमिकल डाल के उसको रीयूज़ करते हैं या उसको फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज़ दैट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, वो आपको अभी नहीं जानना है, बट आप ये सिस्टम समझिए कि हमारा घर का कचरा रोज़ डस्टबिन में कलेक्ट होता है। वो डस्टबिन हम रात को या सुबह जब भी दैट कचरा वाला कम्स, उनको हमको दे देनी होती है। नाउ आप ऐसा सोचिए कि वो कचरा वाला 5 दिन से कचरा लेने नहीं आया। सो इफ़ यू आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट, थिंक दैट 20 पीपल, 20 फ्लैट्स, 5 दिन का कचरा, कितना कचरा जमा हो जाएगा? अगर आप फ्लैट्स घर में रहते हैं, टेनामेंट्स में रहते हैं, देन यू थिंक कि आपके घर का, अकेले का घर का कचरा 5 दिन का कितना कचरा जमा हो जाएगा, राइट? देन नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू थिंक इज व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम? अगर कचरा वहीं कि हम पागल थोड़ी है कि रोज़ घर साफ करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, मम्मा थक जाती है, काम वाली आती है, किसी किसी के घर पे तो इतना डस्टिंग होता है। क्यों होता है? क्लीनलीनेस इज रिक्वायर्ड टू मेक यू हेल्दी, वरना हम बीमार हो जाएंगे। ये जो कचरा अगर इकट्ठा होता है, वहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं, स्मेल बहुत गंदी आती है, यू आर नॉट एबल टू प्ले ऑल्सो, एंड विथ दिस इट इन्वाइट्स डिसीजेज ऑल्सो. So that also you have to write in this letter, right? चलिए let us start. इसका एक ये चीज़ ये याद रखें कि this letter, the letters which you are giving to the authority or to designated, don't ये letters लंबे लंबे नहीं लिखने हैं. Write everything point wise, proper, dot to dot. Clear? इसमें आप लंबा 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 नहीं लिख सकते. जो आपको पॉइंट दिया गया है उसी पॉइंट के ऊपर यू हैव टू राइट द लेटर. क्लियर? सो हियर मोरबी म्यूनिसिपैलिटी, मोरबी, उसका पिन कोड दैट इज 363641. डेट यू विल राइट टुडे इज डेट, दैट इज 9/3/2021. yesterday it was women's day, आज it is 9th March. Dear sir, you can write dear sir, respected sir, honorable sir, what you want to write. I am dash. Now dash में you have to write your name. Clear? I have not written my name, I have mentioned date, but dash, but you have to write your name. Living in बोनी पार्क इन मोरबी, यू हैव टू मेंशन. यहाँ पे बोनी पार्क की जगह पे आपको अपना एरिया मेंशन करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि आपकी सोसाइटी में गार्बेज है. क्लियर? सो यू हैव टू राइट, मेंशन दी सोसाइटी. सो आई एम डैश लिविंग इन बोनी पार्क इन मोरबी. Our locality is facing problem as the garbage bin is not looked into at times. Garbage bin माने वो बड़ा सा जो कचरा इकट्ठा होने का जगह होता है ना. आपने बहुत बार ये आप यहाँ अगर मोरबी 1 में मेनी अ टाइम्स इफ़ यू हैव नोटिस्ड, एवेन्यू पार्क से मामा फटाकड़ा की तरफ जाते हैं ना, तो उस मामा फटाकड़ा के सामने का जो साइड है ना, वहाँ पे पूरा गार्बेज बहुत स्मेल आती है. पिग्स और काउज वहाँ पे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होते हैं. हैव यू सीन? मामा एवेन्यू पार्क से मोरबी के रवापर रोड पे जाओ आप, तो एवेन्यू पार्क से जब आप मामा फटाकड़ा की तरफ जाते हो ना, वहीं साइड में इस तरफ कोने में बहुत बड़ा जगह है. तो कचरा सारा वहाँ ऐसे ही छोड़ जाते हैं, सारे फेंक देते हैं. देयर इज़ नॉट अ बीन. जनरली क्या होता है, बड़ा सा डस्टबिन होता है. डस्टबिन इन द सेंस बड़ा ट्रंक होता है, एकदम बड़ा. टॉम एंड जेरी में आपने बहुत बार देखा होगा. टॉम एंड जेरी बहुत बार, टॉम ऊपर से फ्लोर टेरेस से नीचे गिर जाता है उस कचरे के डिब्बे में, राइट? बहुत बड़ा डस्टबिन होता है, बहुत बड़ा डब्बा होता है. सो दैट काइंड ऑफ डब्बा इज ऑल्सो
रेगुलरली उसको खाली करना पड़ेगा. वंस जब वो भर जाता है तो उसको खाली करना रहता है, राइट. Due to overfeed of garbage, the society people are having problems like bad smell, germs multiplicating, fear of diseases, blockage of roads by animals, right? These are all ill effects. ये क्यों है, क्यों लिखा है मैम ने? क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम हो रही है. क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? बैड स्मेल, एक तो सबसे पहले गंदी स्मेल आती है. देन जर्म्स मल्टीप्लिकेटिंग, यस, दिस डर्टीनेस कॉजेज जर्म्स टू मल्टीप्लिकेट, राइट, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. फियर ऑफ डिसीजेज, एंड एज जर्म्स आर मोर देन वी, अभी तो जैसे कोरोना का काल चल रहा है, बट मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है. दिस ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंसेक्ट्स. ब्लॉकेज ऑफ रोड बाय एनिमल्स, एंड वेयर देयर इज गार्बेज, cows and pigs and dogs, they just be there. That road is also blocked, right? So I request you to look into the matter and clear this area to make us all safe. Thanking you, XYZ. XYZ में वही वापस आपका नाम. Clear? Now this, as you can see, it is short because आपने अपना प्रॉब्लम दे दिया और उसके उनको एक सॉल्यूशन देने का कि भैया आप इसमें देखो. आप यू कैन नॉट टेल देम टू डू द, ऑर्डर नहीं करना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड क्लियर दिस एरिया टू मेक अस ऑल सेफ, राइट. हम आपसे निवेदन करते हैं, वी रिक्वेस्ट यू टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स. क्लियर? सो दिस वे द टू लेटर्स, one is formal, second one is informal. Now today's homework would be third letter, that is this one. Don't worry, I'll be sending this also. Write a letter to the editor-in-chief of leading newspaper requesting him to report an article about the cleanliness of your society. This you have to assume that हमारी societies, ये भी assume करना था that क्या करना है, ये भी assume करना है that our society is the cleanest of society, and you are giving or you are writing a letter to the newspaper. दिव्य भास्कर है, गुजरात समाचार है, संदेश है, आप किसी को भी लिख सकते हो. Here I have written, see, दिव्य भास्कर, रामचौक, मोरबी 36364, and उसका date. I have written this letter also, so you can go through this. Now understood the question? You have to prepare a report. You are requesting the editor to prepare a report on the cleanliness that your society possesses. So आपकी सोसाइटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ क्लीनलीनेस दैट यू नीड टू मेंशन, राइट. चलिए, make sure that you are not writing a lengthier one in the formal letters. Your formal letters should be short and crispy. Clear? Chale. So what we did today, we completed one formal letter, one informal, and this formal letter is in your homework. I'm sending the answer key along with this video, but make sure that you are thinking and writing. Chaliye, hoping to see you all soon. Till we meet next, this is Disha ma'am signing off. एक बात सुन लीजिए, Thursday would be a holiday, so there would not be live classes of English. Right? Live classes of English won't be there because Thursday is a holiday of Mahashivratri. Clear? Chaliye. So this is all from my side. Till we meet next, this is Disha ma'am signing off. Bye bye.